हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन क्लास 12 का एक पार्ट है, सिलेबस है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नीट एग्जामिनेशन एज वेल. सो हम देखेंगे व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, who discovered and designed this reaction, and at the end of the lecture we'll try to solve one or two questions that has been asked in NEET examination very recently, okay, from 2018 onwards. Okay, but before that, allow me to introduce myself. My name is Danish Umar, and my qualifications include a Masters in Biotechnology from IIT Bombay. And afterwards, I moved to New Delhi to pursue my PhD program in immunology from National Institute of Immunology, which is near the JNU. And apart from this, I have also qualified few national level entrance examination with decent all India ranks. For example, CSIR NET in the life sciences, GATE in the life sciences, or IIT JAM, which is an examination for admission in MSc in IITs. Okay, so this was brief introduction of mine in just 30 to 40 seconds. Okay, without any further delay, now let's look at this topic, polymerase chain reaction, and let's look at what are the different steps and what are the requirement of this reactions are. Okay, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे, क्योंकि नाम में ही बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन छुपा होता है, तो एक ये चेन रिएक्शन है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और इसमें हमें एक पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी. पॉलीमरेज क्या है? पॉलीमरेज बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं. उसमें से जो एक एंजाइम जो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाला, दैट वी नीड फॉर दिस रिएक्शन, इज डीएनए पॉलीमरेज. क्यों? क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक डीएनए फ्रैगमेंट, और वी कैन कॉल इट एज डीएनए टेम्पलेट और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट और जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ डीएनए. तो हम एक डीएनए फ्रैगमेंट को और जीन के एक छोटे से पार्ट को हम इसमें एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, हम कुछ रिएजेंट्स ऐड करेंगे, डीएनए टेम्पलेट ऐड करेंगे, एंड देन विल try to vary or up and down the temperatures, and we'll finally get lots and lots of DNA molecule corresponding to that fragment. तो हम पहले देखेंगे कि what are the different reagents that is required for to perform this reaction in laboratory, and then we'll see the what are the different steps and who designed this polymerase chain reaction. Okay, चलो, तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी एक डीएनए टेम्पलेट की, जिसके जिसके एक पर्टिकुलर पार्ट को और फ्रैगमेंट को हम एम्पलीफाई करने वाले हैं. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डीएनए टेम्पलेट. डीएनए टेम्पलेट, जो कि यहाँ पर मैंने ब्लू लैडर से डिजाइन किया और डिपिक्ट किया. ओके, जिसका हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे होंगे, जो रेड पार्ट है, रेड पोर्शन जो मैंने यहाँ डिपिक्ट किया है, जिसको हम एम्पलीफाई करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ओके, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डीएनए पॉलीमरेज. द सेकंड वन इज द एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज these DNA molecules, which is DNA polymerase. Okay, so the second is DNA polymerase. Very important. We'll see who discovered special kind of DNA polymerase for this miraculous reaction. Okay, now third one is, because DNA is a polymer of what? Nucleotides. So we will require lots and lots of nucleotides, because we are going to make lots and lots of copies of DNA molecules. So we will require nucleotides, DNTPs, deoxyribonucleotides. Okay, the fourth thing will require primers. Very important cheese. Very important. It is very important for this reaction. Primers. And lastly, we'll need a bivalent cation Mg+2, because डीएनए पॉलीमरेज का जो एक्टिविटी है वो Mg+ पे डिपेंडेंट होता है. Mg+2 की जरूरत पड़ती है उसकी एक्टिविटी को, उसको सिंथेसिस करने में. So these 5 things that we require to perform this
रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, ये सबको मिक्स करना है, टेम्परेचर अप एंड डाउन करना है, हम देखेंगे कैसे करते हैं फाइनली। तो डीएनए टेम्पलेट, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपी, प्राइमर्स एंड Mg+2। तो प्राइमर्स जो है, थोड़ा प्राइमर के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि प्राइमर्स क्या होता है और वो कैसे हेल्प करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें प्री रिक्वेस्टिक्स हैं इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। पहले के जो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज whatever the fragment that we need to amplify, हमें एंड का सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के अगेंस्ट हम प्राइमर डिजाइन करते हैं। प्राइमर डिजाइन का मतलब कि सपोज करो हमें यहाँ से यहाँ तक सिंथेसाइज का फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई करना था, तो इसके जो एंड अपर वाला फ्रैगमेंट है उसके एंड में हमारे पास एक सीक्वेंस है TCGA। तो हम क्या करेंगे, एक प्राइमर डिजाइन करेंगे। प्राइमर इज व्हाट? प्राइमर इज ए small fragment of DNA molecule that we synthesize in laboratory or that we synthesize chemically in labs. Okay, so we'll synthesize a complementary small part of DNA corresponding to the end of the fragment that we are going to amplify. Suppose ये वाला sequence TCGA था, तो complementarity के हिसाब से AGCT हम synthesize कर लेंगे लैब में, तो ये हमारा प्राइमर की तरह काम करेगा, बिकॉज दिस विल डिमार्केट द एंड ऑफ द फ्रैगमेंट एंड फाइनली जो हमें फ्रैगमेंट मिलेगा वो डिपेंड करेगा कौन सा सीक्वेंस प्राइमर का है हमारे पास। ओके, चलो अब हम स्टेप्स देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डिनेचुरेशन। वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हमें डीएनए को इस पार्ट को एम्पलीफाई करना है तो हमें इनको अलग करना होगा। तो हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड का बना होता है और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ए वीक बॉन्ड विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड की एक प्रॉपर्टी है, जैसे ही आप हाइड्रोजन बॉन्ड को हीट करेंगे या मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज डिनेचुरेशन। हम फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं? डिनेचुरेशन। कैसे करने वाले हैं? वेरी सिंपल, जस्ट इंक्रीज द टेम्परेचर। चलो 95 पे लेके गए टेम्परेचर को, ये डीएनए मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड सारा जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच पे दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों अलग हो गए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इज एनीलिंग। जो हमने प्राइमर डिजाइन किया था वो हमने ऐड किया, 95 पे टेम्परेचर था, उसको हम विल स्टार्ट लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर सच दैट कि प्राइमर बाइंड्स the small DNA fragment binds to its complementary sequence in the parent DNA template. Okay, हमें इतना कम नहीं करना है कि वापस से ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले और we get this parent DNA molecule। हमें उतना टेम्परेचर को लोअर डाउन नहीं करना है यहाँ पर, बस इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो इस टेम्परेचर पे लेके आए, ये एनील करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एंजाइम जो था हमारा डीएनए पॉलीमरेज वो ऐड कर देंगे along with DNTPs and Mg+2। ओके, तो एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम का जो प्राइमर का एंड है उसको एक्सटेंड करेगा, इसीलिए इस स्टेप को बोला जा रहा है एक्सटेंशन। ये होता है 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर को थोड़ा सा रेज करेंगे ताकि ये फॉल ऑफ ना हो, बट ये जो है एंजाइम एक्टिव हो जाए और ये एक्सटेंड करेगा। ठीक है, ये यहाँ से स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा इधर से इधर भी। ओके, एंड देन विल गेट फर्स्ट सिंथेसिस स्टेप। नाउ हमें इसको फिर से रिपीट करना है, जो हमने यहाँ पे बनाया इसको फिर से डिनेचर किया 95 पे, फिर से एनील किया एंड फिर से एक्सटेंड किया। ये अगर हमने 30 to 40 साइकिल्स किया, उसके बाद हमें ये जो पार्ट है ये एम्पलीफाई हो जाएगा। 30 to 40 साइकिल्स के बाद हमें काफी ढेर सारा डीएनए का कॉपी मिल जाएगा, विच इज 1 to 1.2 बिलियन कॉपीज विल गेट। So this was the steps of polymerase chain reaction। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि the extension reaction is happening at 70 to 75 degree centigrade and most of the enzyme is not stable at that temperature, so we need a special kind of enzyme, and that's the clue, because there was a chemist from the US named Carey Mullis,
Carey Mullis, who actually identified a special kind of DNA polymerase that could remain active at this temperature. So he identified a DNA polymerase from a bacteria called as Thermus aquaticus. Thermus aquaticus. ये बैक्टीरिया एक थर्मल वेंट में सरवाइव कर रहा था, उन्होंने वहां से इसको आइसोलेट किया इस एंजाइम को. ओके, तो ये एंजाइम दिस एंजाइम इज थर्मोस्टेबल, so this will function at this temperature, thus this extension temperature. And he finally designed all these reaction or these multiple steps. Okay, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में हम जो डिटेक्शन करते हैं वो पीसीआर बेस्ड होता है, स्पेशली एचआईवी या अभी कोविड-19 के केसेस में भी पीसीआर का वेरिएंट ही हम यूज कर रहे हैं डिटेक्शन के लिए. So this was whole about the polymerase chain reaction, and the scientist who discovered Carey Mullis got Nobel Prize in Chemistry in 1993. So okay. In the next 1 or 2 minutes, we'll discuss 1 or 2 questions from NEET examination. Okay. Here are these 2 questions that has been asked, one in 2018 and one is 2012. Okay, very easy question. So first question is correct order of steps in PCR is. Okay, अभी बताया हमने, अभी हम इतने अच्छे से डिस्कशन किया. पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज डिनेचुरेशन, देन प्राइमर का एनिलिंग एंड देन फिर डीएनए पॉलीमरेज जो थर्मस एक्वाटिकस का पॉलीमरेज था उसके थ्रू एक्सटेंशन. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज डिनेचुरेशन, देन एनिलिंग एंड देन एक्सटेंशन. चलो ऑप्शंस देख लेते हैं वन बाय वन. ऑप्शन ए इज saying that first step is extension, incorrect. Option B is saying first step is annealing, incorrect. Option C is saying first step is denaturation, yes. Lekin next step is saying extension, so it is also incorrect because next step is annealing. So the final answer would be the option D. First step is denaturation, then annealing, then extension. Okay, so the correct answer is D. Very important, very easy question. This was asked in 2018. Okay, so now next question is which one is true statement regarding DNA polymerase used in PCR. कौन सा statement which of the following is correct about DNA polymerase that is used in PCR? So first option is it is used to ligate introduced DNA in recipient cell. इसका तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के साथ, तो ये भी इनकरेक्ट. देन इट सर्व एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, का भी कोई कनेक्शन नहीं है. सेलेक्टेबल मार्कर हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, जो प्लाज्मिड का जो जीन होता है स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, वहां पर सेलेक्टेबल मार्कर, वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होता है. दिस इज आल्सो करेक्ट. इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए वायरस, थोड़ा बहुत रिलेटेड ऑप्शन है बट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो एंजाइम था वो आइसोलेट किया था कैरी म्यूलिस ने फ्रॉम अ बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस. So this is also incorrect. So the last option is it remains active at high temperature. Yes, this is the correct statement. So the option is D as well in this question. So actually this was the key of the whole polymerase chain reaction. So you can see that very easy question has been asked, and question like this is only asked in the NEET examination. Once you understand the different steps of polymerase chain reaction, then the question would be very easy. Okay, thanks a lot for listening to me. I hope I have explained it very well and you have enjoyed it. Thank you.